about the components of the acquired immunity. हमने बात की थी that acquired immunity mainly consists of two components. One was the humoral immunity, which was the antibody mediated immune system, and the second one was the cellular immunity, which was cell mediated immune system. In antibody mediated system, the prime role was played by the antibodies which were produced by the B cells, and the T cells will be helping the B cells to make the antibodies. These B cells, when come in the contact of the foreign antigen, the B cells grow, mature and they differentiate or proliferate to form mainly two types of cells, which were the plasma cells and the memory B cells. The plasma cells will be functioning as the clones of the B cell, and therefore they will be short-lived, but in this short time they produce large number of antibodies. Whereas the memory cells will keep a characteristic of memory, a record of previous encounter with this antigen before, and in the second time it will be producing more antibodies more effectively. The second was cell mediated immune system, which was the cellular immunity, and cellular immunity mainly consists of the different types of T cells. T cell formation is going to occur in bone marrow. The process of T cell formation or any lymphocyte formation was known as hematopoiesis, and these T cells can be either helper T cells, cytotoxic T cells, there were suppressor T cells and memory T cells. In this way, there were different types of T cells which were functioning either in helping of antibody production, or they will be working for cytolysis, that is breakdown of the cell membrane of the incoming antigen, which can be a bacteria or any other pathogenic organism, making pores within the membrane through which the water enters and the foreign antigen is going to swell and it is going to burst. In this way, it will be functioning for the lysis of any pathogen which has entered. Now we are talking about the types of acquired immunity. Students, we very well know that acquired immunity can be mainly of two types, that is active immunity and passive immunity. But both this active and passive immunity consist of certain differences which are very important to understand. So first we are talking about the types of acquired immunity, in which we will mention active immunity. Now what is active immunity? Active immunity means over here the antibody production is going to occur by the cells of our body itself. So here there will be production of antibodies by our cells in response to an infection or वैक्सीनेशन, राइट? जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन एंटर हुआ है। तो जब कोई बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर होता है तो उसकी वजह से हमें कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर होता है, कोल्ड होता है, पेन इन द बॉडी होता है, राइट? तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो जब कोई इन्फेक्शन होता है या तो फिर जब भी हमें वैक्सीन दिया जाता है, कोई भी तरह का वैक्सीन दिया जाता है, तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे सेल्स, पर्टिकुलरली कौन से सेल्स की बात कर रही हूं मैं? लिम्फोसाइट्स की बात कर रही हूं। लिम्फोसाइट्स क्या करने लगते हैं? लिम्फोसाइट्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। What do lymphocytes do? Start producing antibody against that antigen or against that infection or against that vaccine which is being provided to us. So this production of antibody as it occurs on our own, it is known to be the active immunity. In this active immunity, what are the characteristics? That
no harmful effects. It is long lasting also and there are no harmful effects of the active immunity. क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन खुद ब खुद हमारे लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं because they have encountered an antigen in our body and therefore in response to this foreign antigen they start making the antibodies. Active immunity is long lasting, मतलब बहुत देर तक उसकी असर रहेगी, ठीक है, and it has no harmful effects, right? कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स होने के कोई चांसेस नहीं होते in the case of active immunity. Now this active immunity is having only one drawback, that it is somewhat slow. Okay, so it is slow and takes time to be effective. स्लो होती है, राइट? इसलिए ऐसा नहीं है कि एंटीजन एंटर हुआ और तुरंत ही बहुत सारी एंटीबॉडी बन गई और हम बच गए उस डिसीज से. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. एंटीजन एंटर होने के कई टाइम बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शो द सिम्टम्स ऑफ दैट इन्फेक्शन, राइट? आपने शायद सुना होगा दैट पीपल हैविंग मम्स और पीपल हैविंग मीजल्स और चिकन पॉक्स, they have this disease only once in their lifetime and second time they don't have such diseases ever. Why? Because of the active immunity that we are having. First encounter is somewhat slow, but the second encounter with the same antigen is very, very rapid and very effective. Okay, so that is important. Now this active immunity can be both natural active immunity and artificial active immunity. Active immunity दोनों तरह की हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी. नेचुरल तो अभी जैसे मैंने कहा दैट इन केस ऑफ मीजल्स और स्मॉल पॉक्स, ये जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होती है, हमें एक बार स्मॉल पॉक्स होता है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाने लगती है अगेंस्ट द एंटीजन और फिर हमें लाइफ टाइम में ये स्मॉल पॉक्स नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसके एंटीबॉडी ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही है कि सेकेंड एनकाउंटर कभी होने ही नहीं देंगे. द सेम पैथोजन वुड नॉट बी एबल टू एंटर इन अवर बॉडी फॉर द सेकेंड टाइम because already we have prepared the antibodies against that particular disease. तो ये नेचुरली हुआ, हमने बाहर से कुछ नहीं लिया फिर भी हमारी बॉडी एंटीबॉडी तो बनाती ही है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मेडिसिन लेने के बाद ही एंटीबॉडी बनेगी. एक बार इन्फेक्शन हुआ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है. अब यही डिसीज आप कोई मेडिसिन ना भी लो तो भी सेकेंड टाइम नहीं होने वाली because your cells have now generated a secondary response, right? प्राइमरी तो हो ही चुका है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाने की वजह से अब वो डिसीज, अब वो इन्फेक्शन वापस नहीं होता. पर पैसिव कब कहा जाता है? या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कब जनरेट होती है? तो आर्टिफिशियल एक्टिव immunity is generated when vaccines are providing vaccines. अब जब vaccines दिए जाते हैं तो vaccines जो है वो क्या होता है? attenuated weak pathogen. What is a vaccine? It is a weak pathogen, a weak bacteria that enters. एक बैक्टीरिया के एंटर होने पर हमारी बॉडी उसके सामने एंटीबॉडी बनाती है. तो वैक्सीन्स जब दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. वैक्सीन्स देने पर हमारी बॉडी उसके सामने एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है. ये पैथोजन नेचुरली अगर हमारी बॉडी में एंटर हो तो वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं. उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली हमें वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीन्स जब दी जाती है, वैक्सीन मतलब फॉरेन एंटीजन, तो वैक्सीन्स के सामने एंटीबॉडी कौन बनाता है? हम खुद ही बनाते हैं. इसीलिए वैक्सीन्स आर एन एग्जांपल ऑफ
It can be either a viral vaccine. For example, poliomyelitis. पोलियोमाइलिटिस में जो वैक्सीन दी जाती है वो किस तरह की वैक्सीन है? वो एक पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब पोलियो जब वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके सामने हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, राइट? तो एंटीबॉडी तो हम खुद ही बना रहे हैं. 2 वैक्सीन्स आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड. एंटीबॉडी कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं. इसीलिए इसे किसमें इंक्लूड किया जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी में. बैक्टीरियल वैक्सीन में हम कह सकते हैं कि बीसीजी वैक्सीन जो दी जाती है ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, तो ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे डिसीज ना हो, हम लाइफ टाइम ना हो, इसके लिए हमें वैक्सीन दी जाती है बीसीजी वैक्सीन. इसके अलावा हमें एमएमआर वैक्सीन दी जाती है मीजल, मम्प्स और रूबेला के अगेंस्ट. तो ये वैक्सीन बैक्टीरिया से आइसोलेट की गई है, इसलिए बैक्टीरियल वैक्सीन है. और बैक्टीरियल वैक्सीन हमें दें तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट दैट एंटीजन. और इसीलिए इसे किस तरह की इम्यूनिटी कहा गया है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. यहाँ पे पैथोजन खुद ब खुद एंटर हो रहा है, इसीलिए ये नेचुरल है. यहाँ पे पैथोजन को वैक्सीन के थ्रू एंटर किया गया है, इसीलिए ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है. ठीक है, तो दैट वाज अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी. अब हम पैसिव इम्यूनिटी कब कहेंगे? व्हेन इट विल बी रिफर्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब कि हियर pre-prepared antibody are introduced in our body. क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है? प्री-प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज. रेडीमेड एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी में, तो उससे हम क्या कहेंगे? पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे. ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी कंप्लीटली शॉर्ट लिव्ड होती है. शॉर्ट लिव्ड बट इट इज इमीडिएटली इफेक्टिव. इफेक्टिव तुरंत ही है, इफेक्ट उसकी तुरंत पता चल जाएगी, राइट? इमीडिएट इट विल बी अ ट्रीटमेंट, बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है. मतलब यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन द पैसिव इम्यूनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. once you are given a dose of antibody, again you will have to take that dose of antibody after a certain time interval, right? तो यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडी डाले जाते हैं, और जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी हम खुद बनाते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में. अगर पैसिव की बात करें तो ये भी दोनों तरह का होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल कब कहा जाता है? तो नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द मदर टू द फिटस थ्रू द प्लेसेंटा, antibody is traveling and it will be providing the protection to the young one when it is in the womb of mother. Okay, so from mother to the fetus, from mother to the fetus through प्लेसेंटा. तो ये क्या हुआ? नेचुरल, राइट? यहाँ पे कुछ बाहर से नहीं दिया गया है, डायरेक्टली मदर की बॉडी से जो एंटीबॉडीज हैं, मेनली कौन सा एंटीबॉडी की मैं बात कर रही हूँ? आईजीजी एंटीबॉडी मदर से डायरेक्टली किस में जाता है? फिटस में, थ्रू द प्लेसेंटा. तो उस केस में ये क्या हुआ? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हुई. इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉम. कोलेस्ट्रॉम कंटेन विच एंटीबॉडी? IgA एंटीबॉडी कब दिया जाता है? तो आफ्टर द बर्थ ऑफ द इन्फेंट का बर्थ हो जाने के बाद मदर विल बी प्रोवाइडिंग द मिल्क टू द इन्फेंट, और ये जो मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें क्या है? एंटीबॉडी IgA. तो वो भी किस तरह की इम्यूनिटी हुई? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. तो आर्टिफिशियल कब कहा जाता है? आर्टिफिशियल तब कहा जाता है व्हेन द सीरम from humans or an animal is being given to another person, right? जैसे कि किसी
किसी को अभी की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, राइट, तो उस केस में अगर इन्हीं का प्लाज्मा लिया जाए और उसमें से सीरम को अलग करके दूसरे हेल्दी मतलब दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को दिया जाए तो इट कैन बी ट्रीटेड राइट, दैट प्लाज्मा थेरेपी हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट नाउ। तो इसका मतलब क्या है कि उनमें से क्या लिया जाता है, प्लाज्मा में से सेपरेट क्या किया जाता है, सीरम, क्योंकि यही सीरम है जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, और सीरम में जो एंटीबॉडी है that will be effective for another infected person, right? तो इसे यहाँ पे किसी और पर्सन में से या किसी और एनिमल में से सीरम लेके दूसरे पर्सन को दिया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी भी होता है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी होता है। अब इसके अलावा जो हमें बात करनी है वो है इम्यून रिस्पॉन्सेस की। इम्यून रिस्पॉन्सेस जो है, इम्यून रिस्पॉन्सेस दो होते हैं, हमें पता ही है, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो कब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, व्हेन द एंटीजन एंटर्स इन आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है वो है प्राइमरी। यहाँ पे सबसे पहले जो एंटीबॉडी इंक्रीज होगा वो है IgM और दूसरा है IgG। दोनों एंटीबॉडी का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है, पर प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का अमाउंट इनिशियली थोड़ा बढ़ता है और उसके बाद डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर जब वही पैथोजन हमारी बॉडी में वापस से एंटर होता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसे कहा जाता है बूस्टर रिस्पॉन्स। और बूस्टर रिस्पॉन्स में द अमाउंट ऑफ IgG इंक्रीजेस सडनली एंड ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ IgG एंटीबॉडी द सेकेंड टाइम द सेम एंटीजन, द सेम पैथोजन विल नॉट बी एबल टू अफेक्ट your body. Why? Because the secondary immune response is more effective compared to the primary response. ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए उसकी एफिनिटी एंटीजन के लिए बहुत ही ज्यादा होती है और वो इजीली एंटीजन को इरेडिकेट कर लेता है। और ये कौन से सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, मेमोरी सेल्स की। अगर मेमोरी सेल्स हैं तो ये मेमोरी सेल्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे से जनरेट करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके दे विल नॉट अलाउ द पैथोजन फॉर सब्सिक्वेंट अटैक टू योर बॉडी। सो दैट इज अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स। और आपको मेनली याद रखने हैं कि कौन से एंटीबॉडीज मेनली यहाँ पे फंक्शनल रहते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी।